Hello Shruti. Hello Shreya. Did you know how to write informal letter? Yes, but little bit. But did I audience know the informal? Uh, yes, I think you knows or you don't know. Don't worry, I will tell you. Okay. First, we will write sender's address. Means the person who's sending the letter. Okay. Then leave one line and write date. There are two types of date. First, we will write 9th July 2023. If you don't like this method, you can write that method also. July 9, 2023. Okay. And then also leave one line and write salutation. Means? Salutation means write like dear father, dear mother, dear friend, etc. And Okay. then we will come our main part, that is body of the letter. The body of the letter is consists of 6 to 7 lines. And then signatory. In signatory we will write yours lovingly, your name. Okay, should I also try again? Yes, you will write. Okay, you will be right. Sender address means the person who sending the letter. Then leave one line, then write date. Then also leave one line, then write salutation. Then leave one line, the main part of the letter is body of the letter. Consists of 6-7 lines. Then signatory. Yours lovingly, yours name. Okay. So, hello my dear students. So, have you explained the format of informal letter? Yes, sir. Okay. So, do our audience got the format of formal letter? Do you think so? Yes, sir. Okay. I think I should give a example also so they can understand better. Yes, so, you just go and sit. I'll give them the example. Okay. So, hello viewers. My name is Satyam sir. Everybody knows. Now, I'm going to give you an example. Now I'm going to give you an example how to write a informal letter and what are the prospectus and what kind of language you should write over there. So here is the format. Like a student already explained you. First we need to write a sender's address. That means the person who is sending the letter. जो भी इंसान भेज रहा है उसका पता. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेम जिसको ही भेज रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मुझे लेटर भेज रहे हो तो आप मेरा नाम लिख दोगे सत्यम सर, है ना, मिस्टर सत्यम सिंह भदौरिया. ओके एंड फिर आप मेरा एड्रेस लिखेंगे. राइट. सो जो भी मेरा एड्रेस है, जैसे कि यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं मेंशन है बट K911 एट शाकेट टावर न्यू दिल्ली. ओके. उसके बाद हम लोग को एक लाइन छोड़नी है. एक्चुअल में मैं आपको एक छोटी सी हिडन सा फैक्ट बताता हूं. लाइन छोड़ना मैं आप लोग को इसलिए बताता हूं बिकॉज यू विल राइट दिस लेटर इन योर टेस्ट और एग्जाम. तो जब एग्जाम में लिखते हैं तो हमें रूल्ड शीट मिलती है और वहां पर हमें लाइंस होती है, इसलिए मैं लाइंस छोड़ने के लिए बोलता हूं. अदरवाइज जब आप इसको एक प्लेन पेपर पर लिखते हैं उस समय आपको लाइंस नहीं छोड़नी है, बस उतनी स्पेस छोड़नी है जो एक लाइन के बराबर हो. ओके. सो यू नीड टू लीव वन लाइन लाइक दिस ओनली एंड राइट द डेट. Like the date is 12 July 2000, whatever it is. So, like our children already told you, you should write the date in two formats, like 9 July 2023. You can also write July 9 2023. So these are the two formats which you can follow. But don't forget that you should write the month name. आप हमेशा जो month name लिखेंगे वो हमेशा words में लिखेंगे. इसको कभी भी आप ऐसा मत लिखिएगा कि 9/7/2023. Okay. Then again you need to leave one line and write the salutation. Salutation में क्या बताया गया था? Dear mother, dear father, dear friend, ये सब बताया गया था. तो यहाँ पर हमने एक बच्चे का नाम ले लिया, मेरी दोस्त है डियर समांता. ओके. तो डियर समांता को मैं लेटर लिख रहा हूँ. मान लीजिए मैं वरुण को लिख रहा होता तो बोलता डियर वरुण. अगर मान लीजिए अनुज को लिख रहा होता तो डियर अनुज. अगर मान लीजिए अपने पापा को लिख रहा होता तो डियर फादर. अगर मैं अपने ग्रैंडफादर को लिख रहा होता तो डियर ग्रैंडफादर. ओके. सो सबसे पहले इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती है. इसकी सबसे बेस्ट स्टार्टिंग ये भी है. एक और स्टार्टिंग में आप लोगों को बताऊंगा अभी. आई वॉज रियली एक्साइटेड. बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं हम लोग. ऐसा कुछ रेफरल नहीं है कि आपको 3 ही लिखने, आप 2 भी लिख सकते हैं. ओके. सो रेफर ऑफ द लेटर, अदर कम्युनिकेशन, जैसे स्टार्टिंग करते हैं, किसी को फोन वोन करते हैं हम लोग क्या करते हैं, और भाई कैसे हो यार,
सब बढ़िया है कि नहीं है ना, ऐसे पूछते हैं ना, फिर उसके बाद अपने काम की बात करते हैं। तो यही चीजें हैं लेटर में भी। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड टू लर्न दैट यू विल विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। तो ये जो समानता है ये जो है वो कहीं बाहर रहती है। I will show you around Delhi and even take you to my ancestral village हाथौर in पंजाब। तो मतलब उसने सबसे पहले बताया कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम इंडिया आ रही हो और मैं तुम्हें घुमाऊंगी, ये सारी चीजें। Of course I will meet you at the airport, but as you have not seen me, I am giving you a short description of myself। अब यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि तुमने मुझे देखा नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना छोटा सा मतलब बता देता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ या कैसी दिखती हूँ। So I am 5.6 feet tall, इतने लंबे, rather slim, थोड़ा सा पतला दुबला। My hair is cut short, you can see, okay, and I sport what are called spikes। तो मतलब जो बाल है वो मेरे spikes हैं, मेरे spikes नहीं है, sorry यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन I have large black eyes and a small flat nose। flat nose नहीं है मेरी, sorry, तो मैं ऐसा तो स्ट्रक्चर नहीं मैच कर रहा हूँ, बट जो भी समानता से मिलने वाला है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, आई वेयर ब्रेसेस ऑन माई टीथ, ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मीट समांता नेक्स्ट वीक। सो द डे आई कम, अब यहाँ पर दूसरा हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो हमने फटाफट लाइन चेंज कर दी। टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट आई विल बी वेयरिंग ब्लू जीन्स एंड अ शर्ट यू हैड सेंट मी फॉर माई बर्थडे। जो तुमने मेरे बर्थडे में मुझे शर्ट और जीन्स भेजी थी, क्यों भेजी थी भैया? जिस इंसान की शक्ल नहीं जानते उसको जीन्स और शर्ट भेज दी, आप कैसे जानते होंगे? कोई बात नहीं, लेटर तो लेटर होता है ना। आई विल ऑल्सो बी कैरिंग अ बंच ऑफ ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स फ्लावर्स होते हैं, योर फेवरेट फ्लावर्स, काउंटिंग द आवर्स टू मीट यू। ओके, और जैसे कि लास्ट में सिग्नेटरी बताया गया था, योर्स लविंगली फ्रेंड। तो योर लविंगली फ्रेंड, अब जैसे मान लीजिए मैं अपने दादाजी को लिख रहा हूं तो थोड़ा ना लिखूंगा योर लविंगली फ्रेंड, में क्या लिखूंगा? योर लविंगली ग्रैंडसन। मैं अपने पापा को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? योर लविंगली सन। ओके, तो जो भी आपका रिलेशन है वो आप लिखेंगे और लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब मैं आप लोगों को और इजी फॉर्मेट बताता हूं। सबसे पहले बेटा, एज आई गाइडेड, क्या लिखना था आपको? सेंड अस एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त को भेज रहा हूं, तो उसका नाम है भूषण लाल, ठीक है, जो भी नाम हो, ठीक है। और मान लीजिए कि वो रहता है सेक्टर 48 में। किसी से भैया ये इंफॉर्मेशन मैच हो जाए तो ये महज एक संयोग होगा, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ओके, सेक्टर 48, नोएडा, और मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरा सेंटर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी एक लाइन के बराबर जगह छोड़ दी है, मैंने डेट लिख दिया, क्या? मान लीजिए आज 9 है तो 9 जुलाई 2023। फिर मैंने थोड़ी सी लाइन और छोड़ दी और उसके बाद मैंने क्या लिखा? सैल्यूटेशन। तो मेरा दोस्त है तो मैं क्या लिखूंगा? डियर फ्रेंड। अगर मुझे डियर फ्रेंड ना लिखना होता तो मैं लिख सकता था क्या? डियर भूषण, ठीक है ना, डियर भूषण, ठीक है। मैं डियर फ्रेंड भी लिख सकता था, डियर भूषण भी लिख सकता था। और सबसे बढ़िया काम क्या है, इसमें कोई लाइन नहीं छोड़नी। आई एम वेल हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो वेल ओवर देयर। मैं यहां कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि तुम वहां पर खुशी से मजे में होगे, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये मैं बिल्कुल इजी फॉर्मेट बता रहा हूं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू दैट। अब इस दैट के आगे जो भी आपको भूषण लाल से बोलना हो कि अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, अगले हफ्ते मेरी खुद की शादी है, मेरा बर्थडे है, मेरा रिजल्ट है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी इधर पर आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमन सी लास्ट की लाइन। लास्ट में आप लिखेंगे रेस्ट ऑन मीटिंग, give regards,
to elders and love to young ones। इसका मतलब होता है कि बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। लास्ट में लिख दीजिएगा सी यू सून। बात खत्म। बाकी तो आपको पता ही है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना ही है योर्स लविंगली, जो भी आपके दोस्त का नाम, मतलब आपका नाम है या आपका जो भी उससे रिश्ता है, फ्रेंड का, भाई का, बेटे का, जो भी है, और लास्ट में अपना नाम। सो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो कि श्रेया और श्रुति ने आपको सबसे पहले आके यहाँ पर अपना इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया। बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने डिलीवर किया और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।